حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک منفرد اور دلنشین مقام رکھتا ہے۔ آپ کا نام اویس بن عامر تھا اور آپ کا تعلق یمن کے قبیلے مراد سے تھا۔ حضرت اویس قرنی کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے نبی کریم کو دیکھا نہیں، لیکن آپ کے دل میں نبی کریم کی محبت اس قدر گہری تھی کہ اس محبت کی گواہی خود نبی کریم نے دی۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش یمن میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے صبر و شکر کے پیکر تھے اور آپ کی تربیت ایک نیک اور صالح گھرانے میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ایک بزرگ خاتون تھی اور آپ کو بچپن ہی سے اللہ کی عبادت اور نیک کاموں کی نصیحت کرتی تھی۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی والدہ بینا نہیں تھی اور آپ اپنی والدہ کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ نبی کریم سے محبت۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن آپ کی محبت اور عشق نبی کریم کے لیے بے مثال تھا۔ جب حضرت اویس قرنی نے نبی کریم کے نبوت کا اعلان سنا تو آپ کا دل محبت رسول اللہ سے بھر گیا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ رسول اللہ کی محبت اور ان کی اطاعت میں گزرتا تھا۔ حضرت اویس قرنی کی نبی کریم سے ملاقات کی خواہش۔ حضرت اویس قرنی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ آپ نبی کریم سے ملاقات کریں، لیکن آپ کی والدہ کی خدمت اور ان کی بینائی کی کمی کی وجہ سے آپ مدینہ منورہ کا سفر نہیں کر سکے۔ آپ نے کئی بار ارادہ کیا کہ آپ مدینہ منورہ جائیں اور نبی کریم کی زیارت کریں، لیکن والدہ کی خدمت کو مقدم رکھتے ہوئے آپ اس ارادے سے باز رہے۔ نبی کریم کا حضرت اویس قرنی کا ذکر۔ نبی کریم نے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا ذکر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کیا اور فرمایا کہ یمن میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے اور وہ اپنی والدہ کی خدمت میں مشغول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اویس قرنی سے ملے تو اس سے دعا کروائے، کیونکہ اس کی دعاؤں میں برکت ہے۔ نبی کریم کے اس ارشاد نے حضرت اویس قرنی کی عظمت اور مقام کو واضح کر دیا۔ اویس قرنی کا نبی کریم کے لیے قربانی۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی محبت نبی کریم کے لیے اس قدر شدید تھی کہ جب اپنے جنگ عہد میں نبی کریم کے دندان مبارک کے شہید ہونے کی خبر سنی تو اپنے تمام دانت توڑ دیے۔ آپ نے یہ قربانی اس لیے دی تاکہ آپ کو نبی کریم کے درد کا احساس ہو سکے۔ یہ واقعہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے عشق رسول کی ایک مثال ہے۔ حضرت اویس قرنی کی والدہ کی خدمت۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے لیے محبت اور خدمت ایک مثالی کردار تھا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت میں گزاری اور کبھی بھی ان کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب بھی آپ کی والدہ نے آپ کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت دی، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا اور والدہ کی خدمت کو زیادہ اہم سمجھا۔ یہ آپ کی والدہ کے لیے محبت اور خدمت کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت اویس قرنی کی دعاؤں کی قبولیت۔ نبی کریم کے فرمان کے مطابق حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں میں خاص تاثیر تھی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر حضرت اویس قرنی سے ملاقات کی تو انہوں نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے ان کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اس واقعے نے حضرت اویس قرنی کے مقام کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا۔ والدہ کی خدمت اور مدینہ نہ جانے کا واقعہ۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی والدہ بوڑھی اور بیمار تھی اور اب ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ نبی کریم کی زیارت کی شدید خواہش کے باوجود حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی خدمت کو مقدم رکھا۔ کئی بار ارادہ کیا کہ مدینہ جائیں، لیکن والدہ کی حالت دیکھ کر رک گئے۔ آپ کی والدہ نے ایک بار آپ کو نبی کریم کی زیارت کے لیے جانے کی اجازت دی، لیکن مدینہ پہنچنے پر معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں۔ والدہ کی نصیحت یاد آ گئی کہ زیادہ دیر نہ رکنا، لہذا زیارت کے بغیر ہی واپس لوٹ آئے۔ حضرت عمر اور حضرت علی سے ملاقات۔ نبی کریم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے ملنے اور ان سے دعا کروانے کا فرمایا تھا۔ جب یہ دونوں عظیم صحابہ کرام حج کے موقع پر حضرت اویس قرنی سے ملے تو انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی۔
हजरत अवैस करनी ने दुआ फरमाई और इस दुआ की तासीर को दोनों सहाबा ने महसूस किया। इस वाक़ये ने हजरत अवैस करनी की रूहानी अज़मत को मज़ीद वाज़े किया। हजरत अवैस करनी का वजीफ़ा और रियाज़त। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि के मामूलात में इबादत और ज़िक्र अल्लाह का खुसूसी मकाम था। आप दिन रात अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे। रात को जब लोग सो रहे होते तो अब तहज्जुद के नवाफिल में मशगूल होते। एक बार किसी ने आपसे पूछा कि आप इतनी रियाज़त क्यों करते हैं? तो आपने जवाब दिया, दुनिया एक फ़ानी जगह है और मेरी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। मैं इस मकसद के लिए हर लम्हा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हजरत अवैस करनी की गुर्बत और कनात। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि की ज़िंदगी में दुनियावी माल और दौलत की कोई जगह नहीं थी। आप इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारते थे और कनात पसंद थे। एक बार किसी ने आपको सदका देना चाहा लेकिन आपने इसे कबूल नहीं किया। आपने फरमाया कि ओ अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है, मैं किसी से कुछ लेने का मोहताज नहीं हूँ। आपकी इस कनात ने लोगों को अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने का दर्स दिया। हजरत अवैस करनी की बेनियाजी दुनिया से। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत से बेनियाज थे। एक बार किसी ने आपको बहुत कीमती लिबास पहनने की तरगीब दी लेकिन आपने इसे रद्द कर दिया और फरमाया कि मेरे लिए सादा कपड़े काफ़ी हैं क्योंकि ये मेरे दिल को अल्लाह की मोहब्बत के करीब रखते हैं। इस वाक़ये ने आपकी दुनियावी माल और मता से बेरग़बत और आखिरत की फ़िक्र को ज़ाहिर किया। हजरत अवैस करनी का लोगों के साथ हसन सलूक। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि के हसन अखलाक की गवाही हर शख्स देता था। आप हर शख्स के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब। एक बार एक फ़कीर आपके पास आया और मदद की दरख्वास्त की। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि ने अपनी कलील मौजूदगी में से इसकी मदद की और इसे दुआ दी कि ओ अल्लाह तुम्हें अपनी रज़ा और फजल अता फरमाए। ये वाक़या उनकी सखावत और लोगों के साथ हसन सलूक को ज़ाहिर करता है। हजरत अवैस करनी की मौत की पेशगोई। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि को अपने वक्त वफ़ात की इत्तिला दे दी गई थी। एक बार अपने करीबी दोस्तों को बताया कि मेरी मौत का वक्त करीब है और मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। आपने अपने आखिरी दिनों में इबादत और ज़िक्र इलाही में मज़ीद इजाफा कर दिया था। दुनियावी चीज़ों से बेरग़बत। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि दुनियावी चीज़ों से मुकम्मल बेनियाज थे। एक दिन कुछ लोगों ने उन्हें देखा कि वो एक पुराने और फटे हुए कपड़े में मलबूस हैं। लोगों ने उनसे कहा कि आपको एक नया और साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। हजरत अवैस ने जवाब दिया, मेरे लिए यही लिबास काफ़ी है क्योंकि ये मेरी ज़रूरत को पूरा करता है और मेरी इबादत में कोई रुकावट नहीं डालता। मैं दुनियावी चीज़ों में मगन नहीं होना चाहता बल्कि मेरी तवज्जो अल्लाह की तरफ है। हजरत अवैस करनी और गुनाह से बचने की तरगीब। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि का एक मशहूर वाक़या है जिसमें उन्होंने लोगों को गुनाह से बचने की तरगीब दी। एक बार आपने देखा कि कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं और दूसरों को धोखा दे रहे हैं। आपने उन्हें नसीहत की कि झूठ बोलने वाला और धोखा देने वाला अल्लाह की निगाह में पसंदीदा नहीं होता। हमेशा सच बोलें और दूसरों के साथ ईमानदारी का मुजाहरा करें क्योंकि यही रास्ता अल्लाह की रज़ा का है। हजरत अवैस करनी का सब्र और शुक्र। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि की जिंदगी सब्र और शुक्र की बेहतरीन मिसाल थी। एक मर्तबा आपको किसी बीमारी की शिकायत हुई लेकिन आपने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की बल्कि आपने फरमाया, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और मैं इस पर सब्र करता हूँ। अल्लाह की हर हालत में शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि वही हमारे लिए बेहतर जानता है। ये वाक़या सब्र और शुक्र की आला मिसाल है। हजरत अवैस करनी और अफू व दरगुजर। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि के एक पड़ोसी ने आपके साथ बुरा सलूक किया और आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई, लेकिन हजरत अवैस करनी ने इसे मुआफ कर दिया और फरमाया, अल्लाह अफू करने वालों को पसंद करता है और मैं भी अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें मुआफ करता हूँ। ये वाक़या हजरत अवैस करनी के आला अखलाक और अफू व दरगुजर के जज्बे को जाहिर करता है। हजरत अवैस करनी की इबादत का जज्बा। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि की इबादत का जज्बा बहुत शदीद था।
आप दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे और दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं करते थे। एक बार किसी ने आपसे पूछा कि आप इतनी इबादत क्यों करते हैं, तो आपने जवाब दिया, अल्लाह की मोहब्बत मेरी रूह की ग़िज़ा है और मैं अपनी रूह को इस ग़िज़ा से जिंदा रखना चाहता हूं। खजूर का दरख्त। एक दिन हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। अचानक दरख्त से एक खजूर गिरी, जिसे हजरत अवैस ने उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाने लगे। किसी ने उनसे पूछा कि अपने बगैर मालिक की इजाजत के ये खजूर क्यों खाई। हजरत अवैस ने जवाब दिया, मैंने मालिक की तरफ से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उसकी नेमत को कबूल किया है। बाद में जब मालिक को इस वाकया का इल्म हुआ तो उसने कहा कि ये खजूर हजरत अवैस करनी के लिए हलाल थी, क्योंकि उनकी नीयत साफ थी और अल्लाह ने उन्हें रिस्क अता किया था। नमाज के वक्त का वाकया। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि नमाज के मामले में बहुत मोहतात थे और कभी भी नमाज के वक्त को ज़ाय नहीं करते थे। एक दिन जब वो नमाज अदा करने में मसरूफ थे तो एक शदीद तूफान आ गया। लोग घबरा कर अपनी जानें बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे, लेकिन हजरत अवैस करनी ने अपनी नमाज को नहीं तोड़ा और तूफान के थमने तक नमाज में मशगूल रहे। उनका कहना था कि वो नमाज अल्लाह की इबादत का अहम तरीन हिस्सा है। हजरत अवैस करनी की वसीयत। हजरत अवैस करनी ने अपनी वफात से कबल अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नसीहत की कि हमेशा अल्लाह की रजा के लिए काम करो और दुनियावी चीजों के पीछे मत भागो। दुनिया फानी है लेकिन आखिरत अबदी है। आपकी ये वसीयत आज भी हमें अल्लाह की राह में साबित कदम रहने का दर्स देती है। हजरत अवैस करनी का जिक्र ख्वाब में। हजरत अवैस करनी की वफात के बाद एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि हजरत अवैस करनी जन्नत में हैं और उनका मकाम बहुत बुलंद है। जब इस बुजुर्ग ने इस ख्वाब को दूसरे लोगों के साथ बयान किया तो सब ने इस ख्वाब की तस्दीक की और हजरत अवैस करनी की अजमत और अल्लाह की तरफ से अता करदा मकाम को तस्लीम किया। हजरत अवैस करनी की कब्र पर नूरानी मंजर। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि की वफात के बाद कई लोगों ने उनकी कब्र पर नूरानी मनाजिर देखे। ये मनाजिर इस बात की दलील थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने खास फजल और करम से नवाजा है। उनकी कब्र पर आने वाले लोग उनके लिए दुआएं करते और उनकी जिंदगी से सबक सीखते थे। शैतान का वसवसा। एक दिन हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि अपने जिक्र व अज़कार में मसरूफ थे कि शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला कि तुम इतने इबादत गुजार और नेक हो कि तुम्हें जन्नत में जगह मिल चुकी है, अब तुम्हें मजीद मेहनत की जरूरत नहीं। हजरत अवैस ने फौरन इस वसवसे को रद्द करते हुए कहा, शैतान की बातों में आना बहुत आसान है, लेकिन मैं अल्लाह की रजा के लिए अपनी इबादत जारी रखूंगा। अल्लाह का करम और उसकी रजा ही मेरा मकसद है और मैं हर लम्हा इसके खौफ और उसकी मोहब्बत में मुब्तला हूं। हजरत अवैस करनी की वफात। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि की वफात के बारे में रवायत है कि अपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में जंग सफियन में शिरकत की और शहीद हो गए। आपकी शहादत के बाद आपको इज्जत व एहतराम के साथ दफन किया गया और आपकी कब्र आज भी ज़ियारतगाह है। हजरत अवैस करनी का मकाम व मर्तबा। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि का शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें नबी करीम ने अपनी जिंदगी में ही जन्नत की बशारत दी। आपकी मोहब्बत, रसूल वालिदा की खिदमत और दुआ की कबूलियत के वाक़यात हमें एक अजीम दर्स देते हैं। आपकी जिंदगी का हर पहलू हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की रजा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हजरत अवैस करनी के वाक़यात से सबक। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि मोहब्बत रसूल के लिए किसी ज़ाहिरी चीज की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये मोहब्बत दिल की गहराइयों में होती है। वालिदैन की खिदमत और उनकी इज्जत करना भी इस्लाम में बहुत अहमियत रखता है। हजरत अवैस करनी रहमत अल्लाह अलैहि ने हमें यह सबक दिया कि अल्लाह की रजा के लिए हर चीज कुर्बान की जा सकती है।